Hello everyone. Let's see the next point in the topic introduction to different dosage form, that is the classification of dosage form. In last video we have seen the definitions of drug, dosage forms, additives and excipients, and we have seen the importance or need of dosage forms. Now we will continue in this video with the classification of dosage forms. So after watching this video, you will be able to categorize various dosage forms according to their state of nature. State of nature means solid, liquid, semi-solid, etc. So इस बेस पर या इस बुनियाद पर आप dosage forms classification कर सकते हो. Let's see with the classification. Basically based upon the nature or the type or the form in which the dosage form is present. Dosage forms are classified basically into three types: solid dosage forms, liquid dosage forms, and semi-solid dosage forms. Again, solid dosage forms are classified into two: unit dosage forms and bulk dosage form. Now we can make clear that solid, liquid, and semi-solid means these two are already clear to you. Semi-solid means they are half solid, half liquid. Now let's see the solid dosage forms classification. It is again categorized into two: unit dosage forms and bulk dosage forms. Unit means the single dose. At a time we are opening the dosage form and we are utilizing entire dose. That is the unit dosage form. Bulk means it is available in the large amount, like a big container, like a powder container, etc., or tablet container even, and we are taking every time at the time of administration we are taking it. मतलब कि यूनिट डोसेज फॉर्म मतलब कि एक टैबलेट की स्ट्रिप है, इसमें से हम हर एक टाइम एक टैबलेट की स्ट्रिप निकालते हैं, उसमें से एक टैबलेट निकालते हैं और पूरी टैबलेट खा जाते हैं. दैट इज द यूनिट डोसेज फॉर्म. बल्क डोसेज फॉर्म सॉलिड मतलब पाउडर की ये जो कंटेनर रहता है ना, बॉटल रहती है या फिर कंटेनर रहता है, तो उसमें से हम सुबह, दोपहर, शाम या फिर 2 बार, 3 बार, 4 बार, 1 बार रोजाना हम 1 चम्मच लेते हैं या फिर किसी लिक्विड में डिजोल्व करते हैं या फिर वाटर में डिजोल्व करते हैं और पूरी तरह से वो पी जाते हैं. दैट इज द बल्क कंटेनर. बल्क कंटेनर मीन्स अ बल्क सॉलिड डोसेज फॉर्म मीन्स it is available in large quantity and it is taken daily as per the requirement. That is the bulk solid dosage form. Now in unit dosage forms examples are tablets, capsules, powders and pills. मतलब कि ये अगर हम एक बार खोलते हैं तो ये पूरा हम इस्तेमाल करते हैं. That is the unit dosage form. Single. Bulk dosage forms are again classified into two: internal and external bulk solid dosage form. Now the examples under internal bulk dosage forms. Internal means it is taken orally, जो कि orally ली जाती है, consume की जाती है. तो examples है fine powders and granules. So bulk powder का एक example जो है हम ले सकते हैं कि जो granules रहते हैं ना, effervescent granules, तो अगर वो एक बार ही हम utilize करते हैं तो ये यूनिट में आएगा, लेकिन बल्क है तो ये बार बार हम इस्तेमाल करते हैं. तो एग्जांपल इनो है ना, ये आ सकता है. इवन इनो पाउडर भी होती है, ग्रेन्यूल्स भी होते हैं. इंटरनल मतलब ये हम मुंह के द्वारा लेते हैं या फिर ओरली लेते हैं. एक्सटर्नल मीन्स दे आर अप्लाइड ऑन द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन. ये हम हमारी त्वचा पे लगाते हैं, हम ये ओरली नहीं लेते. तो एग्जाम्पल्स ऑफ बल्क पाउडर्स फॉर एक्सटर्नल यूज. बल्क सॉलिड डोसेज फॉर्म्स क्या क्या है एग्जाम्पल्स? डस्टिंग पाउडर, मतलब कि अगर हमें कुछ इंजरी हो तो उस पर हम छिड़कने वाली पाउडर यूज करते हैं. दैट इज द डस्टिंग पाउडर. इनसफ्लेशन, इट इज ऑल्सो लाइक डस्टिंग पाउडर बट इट इज टेकन इन डिफरेंट वे. हम आगे की वीडियो में डिटेल में विस्तार से देखेंगे. डेंटिफ्राइसिस मीन्स टूथ पाउडर. देन snuff, it is also actually it is the outdated dosage form. Still we will see as it is in our syllabus. ईयर पाउडर, सो ये कान में डलवाने वाली पाउडर है. ये सारी एक्सटर्नली यूज किए जाते हैं, इनमें से कुछ भी ओरली नहीं लिया जाता. सो दैट्स व्हाई दीज आर एक्सटर्नल बल्क सॉलिड डोसेज फॉर्म. अब ये एग्जाम्पल किस में आता है? बल्क में आता है. क्यों? क्योंकि ये एक बार इस्तेमाल करके हम छोड़ नहीं देते या फिर ये पूरी तरह से खत्म नहीं होता. डस्टिंग पाउडर है, अगर आज इस्तेमाल करते हैं, हमारी इंजुरी पे, हमारे जख्म में अगर ये स्प्रिंकल करते हैं तो इसके बाद हम कभी भी यूज कर सकते हैं. सो इट इज अवेलेबल इन द लार्ज क्वांटिटी. वी आर यूजिंग एज पर आवर रिक्वायरमेंट. ओके.
Now the liquid dosage form. It is divided into two, biphasic liquid dosage forms and monophasic liquid dosage form. Mono means one, bi means two. So monophasic means in given vehicle or in the given solvent, whatever ingredients are there, that means the drug moiety, drug component and non-drug component. मतलब कि ड्रग मॉलिक्यूल और एक्सिपिएंट या फिर एडिटिव जिसे हम नॉन ड्रग कंपोनेंट कहते हैं, तो ये पूरे दिए गए सॉल्वेंट में या वेहिकल में डिसॉल्व होते हैं और वन फेज बनती है, उसे कहते हैं मोनोफेजिक. बायफेजिक मतलब कि दो फेजेस अवेलेबल है, एग्जिस्टिंग है, मतलब कि एक फेज दूसरी फेज में पूरी तरह से डिसॉल्व या सोल्यूबल नहीं होती. तो ये जो बायफेजिक है, ये जो दो फेजेस है ना, तो दोनों लिक्विड हो सकती है या फिर एक सॉलिड एक लिक्विड हो सकता है. अगर इन दोनों फेज में से एक सॉलिड एक लिक्विड है तो एग्जाम्पल आता है सस्पेंशन, कि दिए गए लिक्विड में दिया गया सॉलिड सोल्यूबल नहीं है, तो इसे सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करके जो डोसेज फॉर्म बनता है उसे हम सस्पेंशन कहते हैं. और अगर दोनों फेजेस लिक्विड हो, ऑयल या वाटर, जो कि एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते, मिसिबल नहीं होते, तो इन्हें इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करके मिसिबल किया जाता है और जो डोसेज फॉर्म बनता है उसे इमल्शन कहते हैं. तो ये क्यों बनाते हैं, बायफेजिक क्या रहता है, ये हम आगे वन बाय वन ये डोसेज फॉर्म्स हम इन डिटेल देखने वाले हैं, तो उसमें देखेंगे कि ये है क्या, इनका एक्सप्लेनेशन क्या है हम आगे देखेंगे. फिलहाल बायफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म के एग्जांपल्स है इमल्शन, सस्पेंशन. नाउ वी विल सी मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म. दे आर अगेन डिवाइडेड इनटू टू, internally used monophasic liquid dosage forms and externally used monophasic liquid dosage form. Now the examples of internally used. Internally used मतलब के ये orally लिए जाते हैं, ये माउथ से कंज्यूम किए जाते हैं, और ये मोनोफेजिक है मतलब कि इसमें जो भी सारे ड्रग्स है वो दी गए सॉल्वेंट में या व्हीकल में पूरी तरह से डिसॉल्व होते हैं. So examples are syrups, elixirs, linctures, drops, mixtures. We will see one by one in detail. Now externally used monophasic liquid dosage form मतलब कि ये ऐसे monophasic liquid dosage forms है जो स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन पर लगाए जाते हैं, अप्लाई किए जाते हैं. Examples: liniments, lotions, gargles, throat paint, mouthwash, spray, eye lotion, eye drop, nasal, जो कि ये बाहर लगाए जाते हैं, ओरली नहीं लिए जाते, दैट इज एक्सटर्नल. ये सारे हम वन बाय वन इस टॉपिक के वीडियोस में देखने वाले हैं. आगे है सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स. सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू टू, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स. सो एक्चुअली सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स आर अप्लाइड टू द स्किन, ये स्किन पर ही लगाए जाते हैं. फिर भी इन्हें इंटरनल एक्सटर्नल क्यों बनवाया गया है, तो इंटरनल के एग्जाम्पल्स है सपोजिटरीज एंड पेसरीज, और एक्सटर्नल के एग्जाम्पल्स है ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, जेलीज. तो हमें पता है ऑइंटमेंट का एग्जाम्पल है आयोडेक्स, झंडू बाम. क्रीम्स हमें पता है जो हम कॉस्मेटिक भी अप्लाई करते हैं. पेस्ट हमें पता है, टूथपेस्ट कह सकते हैं, या फिर कुछ भी ऐसी चोट आए तो हम जो इस्तेमाल करते हैं वो पेस्ट है, जिंक ऑक्साइड पेस्ट है. जेलीज तो हमें हेयर जेल पता है. तो ये सभी स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन पे, मतलब हमारी त्वचा या हमारे बालों पे इस्तेमाल करते हम लगाते हैं, दैट्स व्हाई दे आर एक्सटर्नली यूज्ड. इनका नेचर क्या है, ये पूरी तरह से सॉलिड भी नहीं है, लिक्विड भी नहीं है, मतलब बीच में है, दैट इज सेमी सॉलिड. अब हम देखेंगे कि ये इंटरनल कैसे हो गए. ये सपोजिटरीज और पेसरीज जो है ये ऐसे सॉलिड डोसेज फॉर्म्स है जो बॉडी कैविटीज रहती है ना, अदर देन माउथ बॉडी कैविटीज, लाइक रेक्टम, लाइक वजाइना, लाइक ईयर, लाइक नोज, लाइक आईज. सो माउथ छोड़ के जो भी बॉडी कैविटीज है उनमें ये इनिशियली सॉलिड डोसेज फॉर्म्स रहते हैं. ये बॉडी कैविटीज में माउथ छोड़ के इंसर्ट किए जाते हैं या फिर रखे जाते हैं. तो वहां पे मतलब आईज, नोज या फिर ईयर या फिर वजाइना, रेक्टम, ये म्यूकस मेम्ब्रेन होता है हमारा, ये जो कैविटीज है. तो इन कैविटीज का टेम्परेचर ये बॉडी टेम्परेचर रहता है. सो इस बॉडी टेम्परेचर में ये रखे जाने के बाद ये सॉलिड डोसेज फॉर्म्स सेमी सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं. सो एक्चुअली दीज आर सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स. बनाते हैं हम लैब या इंडस्ट्री में सॉलिड में,
फ्रीज में रखते हैं हम रेफ्रिजरेशन कंडीशन में, और जब ये कैविटीज में रखते हैं तो ये उसके मूल स्वरूप में आते हैं, दैट इज द सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। और ये यहाँ पे ड्रग उसका जो भी मेडिसिनल एक्टिविटी है, थेराप्यूटिक एक्टिविटी है, वो इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, सो ये इंटरनल क्यों कहलाए जाते हैं? एक्चुअली दे आर एक्सटर्नल, बट ये बॉडी कैविटी के अंदर रखे जाते हैं, इसलिए थोड़ा इंटरनल में इसे डाला गया है। अदरवाइज दे आर नॉट टेकन ओरली। सो हम देखते हैं ना ये इंटरनल, सो टेकन ओरली, सो ये इंटरनल है, लेकिन दीज आर नॉट टेकन ओरली, दीज आर केप्ट इन द बॉडी कैविटी। सो लेट इट क्लियर, ये पूरी तरह से आप दिमाग में फिट कर लो कि इसका मतलब कुछ और है। So these are also external but kept in the body cavity. So that was about the classification of dosage forms. Thank you so much for watching this video. From next video we will see every dosage form in detail. हर एक वीडियो में हम सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड और इनके जो एग्जाम्पल्स है वो वन बाय वन हम पूरी तरह से देखेंगे। Thank you so much for watching this video.